11 a.m. in the morning. We come up with the Hindu analysis. Today is 7th November, that is Tuesday. And we are here with the Hindu analysis of Tuesday. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you are audible, so that we can start our session. मेरी आवाज आ रही है? Okay. So these are some of the articles. First, we'll be discussing about governor delaying crucial bills, a matter of concern, says Supreme Court. We'll be discussing about it. Then here is an election that is happening in the state of Mizoram and Chhattisgarh. So we will be talking about that. Then here, aftershocks rock Nepal, Delhi. So we'll be talking about a sort of earthquake. I mean, in Nepal, there has been an earthquake, aftershocks have come, and it has affected Delhi also. So these are the things we'll be talking about. So let's start with this one. So Mizoram and a part of Chhattisgarh will go to the polls. Okay, so just yesterday we had discussed it that Chhattisgarh has 90 MLA seats. And in the phase 1, actually 20 MLAs or 20 seats mein there is election. Okay, so actually it is done in phased manner in the state of Chhattisgarh, phase 1 mein. However, in the state of actually Mizoram, all the 40 seats mein ek bar election ho raha hai. So in all the 40 seats, election is done. Okay, so there are 40 seats in Mizoram, and in one phase the entire election is getting done. Okay, so just have an idea. दूसरी चीज ये कि जो 20 सीट्स में जो इलेक्शन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, these are the seats which are actually mostly affected with Naxal areas, most affected. अब देख रहे हो, most of these seats are Naxal affected belts with district of Bastar, Dantewada, Kankar, Kabir-Dham, Rajrandgaon. So देखो ये वाला रीजन है ना, देखो if you see it carefully, this is the state of छत्तीसगढ़. और जो सदर्न पोर्शन है छत्तीसगढ़ का, खास की ये वाला रीजन, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है दिस रीजन में. ठीक है, एंड यहीं पे आपको मिलेगा दीज रीजन्स यू विल फाइंड प्लेसेस लाइक यू मस्ट हैव हर्ड, यहीं पे आपको मिलेगा दांतेवाड़ा. देन ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर इज वेरी मच अफेक्टेड एक्चुअली विद द नक्सल अफेक्टेड रीजन एंड ऑल. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है, ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. नाउ एक और आर्टिकल थी, aftershocks rock Nepal, Delhi. Okay, now what do you mean by this? So aftershocks, देखो actually क्या हुआ, there have been earthquake. I hope you are aware few days back. देखो मैंने आपको बताया है कि earthquakes happen in plate boundaries. earthquake कहाँ पर होता है mostly, मतलब बहुत सारे रीजन होता है, but one of the places where an earthquake happens is actually where there is plate boundary, जहाँ पे plate boundary होता है. Okay. Now, so I hope you are aware, we have discussed it a lot. देखो ये जैसे इंडियन प्लेट है, यहाँ पे तिब्बत का प्लेट है ना, तिब्बतन प्लेट है. This one is called as Indian subcontinent या इंडियन प्लेट. So both got hit 55 million years back, और यहाँ पे जाके हिमालयास बन गया था. Yes, इस रीजन में. And here is the place where actually this is the plate boundary, जहाँ पर दो प्लेट मर्ज करती है. Okay, and that is why it is said that Himalaya is one of the actually earthquake prone zone. Okay, ठीक है, so just have an idea about it, and that is why we have seen a lot of earthquakes. जैसे 2015 में नेपाल में आया था, इस साल भी अभी आया था. So अभी recently where 150 people around died. So that is what they are talking about. 5.6 मैग्नीट्यूड का आया था. अच्छा, 5.6 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में मेजर किया था, ये पता होना चाहिए. इट इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल. The magnitude is measured in Richter scale. Similarly, एक और होता है, उसको होता है Mercalli scale. इसको ही पढ़ना, Mercalli scale to measure earthquake. इसकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए होता है, और Richter scale जो है मैग्नीट्यूड. ठीक है, so these are the things you should be knowing about it. Yes. Now, हाँ, so एपिसेंटर जो इसका था वो था यहाँ पे कहीं पर था, जो जिसमें 150 लोग की डेथ हुई. So it actually impacted न्यू दिल्ली, ये सब रीजन में भी इम्पैक्ट पड़ा था. ओके, सो दिस रीजन में देयर वाज अ शॉक ऑन इट. और आफ्टर शॉक मतलब क्या होता है, कई बार वेव्स में आते हैं. एक बार अर्थक्वेक आया ना, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट अर्थक्वेक विल कम वेरी सून. ठीक है, तो आफ्टर शॉक्स आए 3.5 का, 3.8 का. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. यस, हाँ, जो सेंटर होता है उसको हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं.
ठीक है, जहां पर से अर्थक्वेक आता है। ओके, जस्ट हैव एन आइडिया। अच्छा, 2-3 टर्म है, मैं इट्स अ होमवर्क, गो एंड फाइंड आउट रिगार्डिंग अर्थक्वेक। एपी सेंटर, ठीक है, दूसरा है हाइपो सेंटर, तीसरा है फोकस। These are the 3 terms associated with earthquake. Go and find out what is the meaning of these things. And after the class is over, write it in the comment section. नीचे comment section में लिख देना class over होने के बाद. Okay. Now, so first page में article the governor delaying crucial bills a matter of concern, says Supreme Court. Actually देखो, आपको पता होगा this is how the system works. In state legislative assembly and if there is legislative council both passes the bill, then it goes to the governor and governor is supposed to sign it. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे एक्सप्रेस एक्यूट डिस्प्लेजर एट गवर्नर होल्डिंग की बिल्स। तो एक्चुअली गवर्नर के पास बहुत सारा पावर होता है, एक होता है कि रिजेक्ट कर दें एंड एक होता है विथहोल्ड द एसेंट। विथहोल्ड द एसेंट का मतलब होता है नाइदर साइन इट नॉर रिजेक्ट इट, अपने पास रख रहे हैं ना, नहीं विथहोल्ड द एसेंट मतलब रिजेक्ट कर दे। हाँ, देन एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो, इसमें क्या होता है नाइदर साइन नॉर रिजेक्ट। फिर एक और होता है जिसमें सेंड बैक टू लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ये होता है। ओके, फिर एक होता है कि रिजर्व फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट, स्पेशली व्हेन द पावर ऑफ हाई कोर्ट इज गेटिंग अफेक्टेड, प्रेसिडेंट को भेज देते हैं साइन करने के लिए, एक ये होता है। एक होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेज देते हैं, एक है कि रिजेक्ट कर देते हैं, एक है कि वही विथहोल्ड एसेंट और रिजेक्ट सेम थिंग है, ठीक है। एक है पॉकेट वीटो, मतलब उसमें क्या होता है कि नाइदर रिजेक्ट नॉर सेंड, कुछ नहीं करते, बस वैसे ही रहने देते हैं। So that's called as pocket veto. Okay, Article 200, very good. So these are some of the things the governor have power. Now, but issue ये है कि the many states have actually moved the Supreme Court. That look, the governor is not signing it. Telangana government moved Supreme Court against delays by governor in giving assent. Assent मतलब वही permission, okay करना. To bills passed by legislature. देखो ये मार्च की न्यूज है। Similarly, Tamil Nadu moves Supreme Court against governor again, causing impediments in vice chancellor's appointment. So this is November 3rd, November news. Then Punjab government moves Supreme Court against governor and all. So these are the things, especially opposition ruled states, जो है states में, they have moved the Supreme Court and all. So express acute displeasure at governor holding key bills, especially non-BJP ruled states and all. So मतलब CJI ने नाराजगी जताई, गवर्नर शुड नॉट बी ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट दैट दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ, तो देखो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एक गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर जो होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं ना, गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एक्चुअली कम्स फ्रॉम द इलेक्टेड एमएलएज जो मेजोरिटी जीतते हैं एंड ऑल। सो दिस रिप्रेजेंट्स विल ऑफ पीपल, है ना। डेमोक्रेसी में विल ऑफ पीपल चलता है ना, जिसको जनता ने चुना है वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए एज सच, मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। सो द वन हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल शुड बी मोर पावरफुल, दे शुड हैव द पावर टू टेक द डिसीजंस, फाइनल डिसीजन, राइट, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गवर्नर को ये पता होना चाहिए कि गवर्नर जो इलेक्टेड नहीं है जनता के द्वारा, इसीलिए मेन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मोस्टली चलनी चाहिए। दैट इज व्हाट ही मीन्स टू से। ओके, yes, there is a serious issue, we should look into them. Why should parties be made to approve the court for the governor to act? We are a democracy in operation since the birth of constitution. मतलब वो ये बता रहे हैं कि क्यों ऐसी क्यों नौ बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है, वहीं पर मतलब स्टेट में ही सॉल्व कर लेना चाहिए ये सब बात। These are the matters to be sorted out between governors and chief minister. तो गवर्नर और सीएम मिल के ये सब बात को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, इसके लिए मतलब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोर्ट वगैरह आना पड़े। These are the things he is talking about. Okay, yes. Now, before moving on, guys, every day at 9 PM we are having a crash course on our YouTube and app. दोनों पे जा रहा है, you can watch it. That would be very very beneficial for you. और ये yesterday we have done a session. Please do watch it. देखो, एक तो मैंने अवार्ड्स वगैरह डिस्कस करा है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स लाइक ऑस्कर, बाफ्टा, देन नोबेल प्राइज एंड ऑल, है ना। So these are the things I have discussed it. दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जिससे आजकल क्वेश्चन आ रहा है, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ऑल। तो इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह पे भी थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन दिया था। सो डू वॉच इट, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, यस, एंड दिस इज एन ऑल इंडिया ओपन मॉक फ्रॉम 10 to 18 November. So we'll be running an all India open mock for CLAT. So do join it. इसको अटेम्प्ट करो, कुछ नहीं करना है, go download the app, go to CLAT section, सामने ही में रजिस्टर लिखा होगा, वहां पे जाके रजिस्टर कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया, वहां से भी कर सकते हो, या ऐप पे जाके CLAT सेक्शन में जाके रजिस्टर कर सकते हो, एंड यू कैन अटेम्प्ट इट फ्रॉम 10 to 18 November. ये जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल।
ओके, गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप। अगर आप नेक्स्ट ईयर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर दिस। आई मीन दिस कोर्स 2025 का कोर्स है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कॉल ऑन दिस नंबर 9538895678 पे कॉल कर सकते हो। एंड इफ यू वांट अ कोर्स एट अ चीपर रेट, ये वाला अटेम्प्ट करो स्कॉलरशिप। 11 नवंबर को 11 AM इन द मॉर्निंग होगा। इफ यू क्वालिफाई इट, यू विल गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप, ठीक है। एंड दिस इज अभिमन्यु सर्स क्लास ऑन 18th नवंबर, अगेन ऑन ऐप। गो टू क्लैट सेक्शन, ये ऐप डाउनलोड करो, क्लैट सेक्शन में जाओ। 18th नवंबर को 6 PM विल बी हैविंग अ सेशन, रोड मैप टू क्लैट 2025 विद अभिमन्यु सर। ओके, यस। Now let's talk about the editorial. A telco's double dip attempt that threatens net neutrality. देखो, अब टेलकोस मतलब वही टेलीकॉम है ना, टेलीकॉम कंपनीज एंड ऑल। टेलकोस मतलब हुआ टेलीकॉम कंपनी एंड ऑल, है ना। देखो, नेट न्यूट्रलिटी ये मेन कॉन्सेप्ट है, समझना है। दिस इज थिंग नेट न्यूट्रलिटी, ये काफी ज्यादा एक बार 2017-18 में बहुत न्यूज में था, नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। So the main topic we'll be discussing in this editorial is net neutrality. Okay, तो दूसरी चीज है कि उन्होंने OTT के बारे में, he is a former chairman of TRAI, Telecom Regulatory Authority of India। ये TRAI ही एक अथॉरिटी है जो कि सारे टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करती है, ठीक है ना। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी सेट अप अंडर सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, यानी ये स्टैचुटरी बॉडी है ना। TRAI एक्ट के तहत बनाया गया है। स्टैचुटरी बॉडी मीन्स अ बॉडी विच इज द रिजल्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री लॉ। It is the regulator of the telecom sector in India, consists of chairperson, not more than 2 full-time members and all, ठीक है। फिर उसके लिए टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपैलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो बेसिकली इसका काम यह है कि सारे टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करना, कि कोई अनएथिकल एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है या कोई, है ना। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग, जैसे सेबी कैसे होता है, सेबी होता है क्या चीज के लिए, सेबी इज फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, है ना। सिमिलरली टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वी हैव अ स्टैचुटरी बॉडी कॉल्ड एज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके फॉर्मर चेयरमैन है, उन्होंने लिखा है आर्टिकल, है ना। और मिस्टर सुनील वाजपेयी इज आल्सो देयर, बोथ हैव रिटन दिस। ओके, अब देखो, इन जुलाई दिस ईयर TRAI एट द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट इनवाइटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन ऑन द नीड एंड पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ OTT सर्विसेज। इट सीम्स इट्स OTT सर्विसेज आप जानते होगे, आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से जानते होगे। सो OTT सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब OTT सर्विसेज है। तो यू मस्ट बी नोइंग इट, यू मस्ट हैव यूज्ड इट इन अ मच बेटर वे देन मी। मैं तो कम ही यूज करता हूँ, बहुत आपको ज्यादा से पता होगा कैसे ये काम करता है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन सीरीज एंड ऑल एटसेट्रा। तो इसमें रेगुलेशन की बात कही गई है। हाँ, एक मसला ये भी है कि इसमें रेगुलेशन नहीं होता है एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि a lot of contents goes unregulated, वो बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, बिकॉज देर आर समटाइम्स थिंग्स विच शुड नॉट बी शोन टू द कॉमन पब्लिक या स्पेशली टू द चिल्ड्रन, बट इट इज शोन एंड ऑल। तो एक मसला ये भी है OTT के साथ। फॉर मोर देन अ डिकेड टेलीकॉम कंपनीज हैव सीन रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स सच एज वॉइस कॉल, SMS एंड ऑल। तो बहुत दिन से, मतलब कई सालों से SMS से, कॉल से कंपनी जो है वो अर्न कर रही थी एंड ऑल। एज कंपीटिंग OTT सर्विसेज आर ऑफन फ्री, तो कई बार OTT सर्विसेज फ्री होता है ना। अब इसमें क्या है कि OTT में सेम टैक्स या लाइसेंस फी नहीं लगता है, इसीलिए अनइवन प्लेइंग फील्ड होता है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या है नेट न्यूट्रलिटी, ये आपको समझना, मेन चीज जो है आपको ये समझना है। सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इट इज द प्रिंसिपल दैट एन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर has to provide access to all sites, content, application at the same speed, under the same condition, without blocking or giving preference to any content. जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो किसी एक इंटरनेट या वेबसाइट या कोई ऐप के साथ मतलब प्रेफरेंस नहीं देगा किसी एक को, या किसी एक के साथ बेईमानी नहीं करेगा, बल्कि सबको बराबरी से दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट अ रफ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई एक ISP है, उसको अब उसने इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया, मान लीजिए आप XYZ हो, आपका नाम है। तो जब आप इंटरनेट खोलोगे, तो जैसे आप फेसबुक खोल रहे हो मान लो, वो भी सेम स्पीड से खुलना चाहिए, यूट्यूब भी सेम स्पीड से खुलना चाहिए। अगर और कोई चीज है, लेट्स से ट्विटर है, वो भी सेम स्पीड से खुलना चाहिए। या आप कोई और चीज, कोई सी कंपनी की वेबसाइट खोल रहे हो कोई भी, जैसे मान लीजिए, ठीक है। सो सब सेम स्पीड से खुलना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस तरह प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट कि मान लो फॉर एग्जाम्पल फेसबुक खुलेगा लेकिन यूट्यूब स्लो खुलेगा, या स्लो यूट्यूब खुलेगा ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो ये मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। सबको इक्वली आपको इंटरनेट देगा in the same in this way कि आपको you should get access, you should be able to open all the websites, all the apps in
विथ इक्वल स्पीड्स विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है। जैसे अगर नेट न्यूट्रलिटी अगर नहीं हो तो मान लीजिए हो सकता है कोई कंपनी इसको आईएसपी वाले को पैसा दे दे, कुछ भी पैसा, एक्स अमाउंट, एक्स करोड़, कि चलो तुम ऐसा करना कि जब मेरा वाला वेबसाइट खोले तो फास्ट खोले, बाकी अगर मेरे कंपटीटर का खोले तो स्लो कर देना वेबसाइट, और समथिंग लाइक दैट, या ना खोलने देना, ब्लॉक कर देना। सो दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। आप समझ रहे हो ना? इसमें क्या होगा, मोनोपोली हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए कोई कंपनी है कॉस्मेटिक्स की, ठीक है, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है। अब क्या हुआ, ए कंपनी बहुत ज्यादा रिच है, बताते हैं क्यों नेट न्यूट्रलिटी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत रिच है, इसके पास बहुत पैसा है। बी सी डी थोड़ा छोटी कंपनी है, तो ये रिच कंपनी आईएसपी को पैसा दे देगी कि तुम जब नेट पे लोग सर्च करें एक कॉस्मेटिक्स के बारे में, खाली मेरे कंपनी का शो करो, बी सी डी का ब्लॉक कर देना वेबसाइट। तो उससे क्या होगा, ए की मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाएगी कि नहीं, है ना? और दिस इज कंसिडर्ड एज वेरी बैड, कंपटीशन को किल करता है मोनोपोली, आपको पता होना चाहिए। आई होप यू आर अवेयर, है ना, दैट इट किल्स द कंपटीशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक का ऐप खुले, एक का ब्लॉक कर दे, और समथिंग लाइक दैट। सो दिस शुड नॉट हैपन। दैट इज द आइडिया ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, दैट इट इंश्योर्स हेल्दी कंपटीशन, है ना, है ना, जिसको कहते हैं मतलब बायसनेस नहीं होता, इम्पार्शियलिटी होता है। इम्पार्शियलिटी, हाँ ना, पार्शियलिटी शुड नॉट बी देयर, है ना, कि कोई भी कंटेंट खोलें, ऐप खोलें, सो इसको प्रेफर। अब इससे बहुत डिबेट होता है क्या नेट न्यूट्रलिटी है, तो बहुत सारे जगह नेट न्यूट्रलिटी नहीं भी होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज सेड कि इफ यू गो इन चाइना देन परहैप्स आप शायद गूगल वगैरह बहुत सारे ऐप्स या जीपीएस वगैरह नहीं खुलते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ऑल, सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। सो एक काफी डिबेट चलता है नेट न्यूट्रलिटी पर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट। मेन थिंग वही है, नेट न्यूट्रलिटी अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे। टेलीकॉम कंपनीज ऑफिस कैपिटलाइज, अब इसमें बहुत सारी चीजें गए हुए हैं, उन्होंने बात की है कि टेलीकॉम ओटीटी सर्विस, देखो आई हैव नॉट यूज्ड इट मच ओटीटी टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई वोंट बी कमिटिंग मच ऑन ओटीटी, ठीक है। परहैप्स यू माइट बी नोइंग बेटर इट कि कौन सी चीज में ओटीटी में चार्ज लगता है, किसी में चार्ज नहीं लगता है, किसी में ज्यादा चार्ज लगता है, किसी में कम लगता है, सो यू माइट बी अवेयर ऑफ इट। फिर वो एक टोल प्लाजा से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना आपको नहीं जाना है डिटेल में। सो द ऑथर इज कंपेयरिंग विद टोल प्लाजा, जैसे कि बोल रहे हैं कि अगर कोई एक कार है, एक खास नंबर ऑफ कार बहुत सारी आ रही है, तो क्या इस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, इसलिए कि आप ज्यादा जाम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये सब दलील है उन्होंने दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कार है, मान लो एक खास किस्म की कार है एक्स, उसका सेल बहुत ज्यादा हो गया, तो ये टोल पे ज्यादा लगेगी वैसी गाड़ी, तो टोल वाले बोलेंगे कि अगर एक्स कार आएगी तो हम ज्यादा चार्ज लेंगे। तो क्या सही है? नहीं, कि ये दलील देंगे देखो मेरा जाम तो लग रहा है आपकी कार की वजह से, आपने इतनी सारी गाड़ी बेच दी, बट उसका रिवर्स भी देखो, जब ज्यादा नंबर ऑफ कार्स आ रही है तो ज्यादा टोल भी तो जा रहा है आपके पास, तो इक्वल चार्ज लगना चाहिए ना। हाँ, वही सब वो दलील बता रहे हैं, ठीक है। तो इतना दलील उल्ली आपको नहीं जानना, ठीक है, नो नीड टू गो इन डिटेल। हाँ, likewise if OTT were to acquiesce to the demand of telcos, the incurred cost would trickle down to subscriber। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर चार्ज ज्यादा लगाने शुरू कर दिए और चार्ज कंपनी से मांगने लगे, तो कंपनी वाले जनता से मांगना शुरू कर देंगे। तो वही सब दलील दे रहे हैं कि इफ OTT को रेगुलेट किया गया, ज्यादा फीस लिया गया, सो जनता से फिर लिया जाने लगेगा, जो सब्सक्राइबर्स हैं दे विल हैव टू पे मोर एंड ऑल सब्सक्रिप्शन फी। सो दीज आर द थिंग्स टॉकिंग अबाउट। नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आई होप यू गॉट इट, है ना। Dawes earlier notion and principle concerning common carriage which posit and all, तो इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, है ना, ठीक है। फॉर्म द बेसिस ऑफ TRAI's रेगुलेशन एंड ऑल, तो 2017 में ये काफी न्यूज में था उस टाइम पर, ये सब चीजें मैंने बताया 2017-18 में इट वाज इन द न्यूज रिगार्डिंग नेट न्यूट्रलिटी एंड ऑल। खैर, ओके, साइड में एक आर्टिकल थी डिफेक्शन बिजनेस। नाउ अब देखो ये जो है ना, ये थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल है, वन पर्सन गोइंग हॉपिंग, है ना, पार्टी हॉपिंग सीम्स टू स्टे एज पार्टी पिक्स कैंडिडेट विद। पार्टी हॉपिंग का मतलब होता है एक पार्टी से दूसरे में चले गए, दूसरे से तीसरे में आ गए, तीसरे से चौथे में आ गए, दैट्स कॉल्ड एज पार्टी हॉपिंग। ओके, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा इलेक्शन से जस्ट पहले वी सी मोर, ठीक है, इलेक्शन के आसपास जो होता है ना सीजन में, वी सी अ लॉट ऑफ पार्टी हॉपिंग्स एंड ऑल। ओके, नाउ सो दिस इज अ क्वेश्चन, प्लीज रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर इट। देखो एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ है, किस शेड्यूल में मेंशन है, प्लीज टेल मी, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, ये बताइए। और ये मैंने क्यों पैसेज दिया पता है, बिकॉज ये नॉमिनेटेड एमपी एमएलए से रिलेटेड है, बिकॉज इवन एंटी डिफेक्शन लॉ इज ट्रू फॉर नॉमिनेटेड एमपीज एमएलए आल्सो, एमपीज, ठीक है। तो आई नो कि सर अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट होके तो नहीं आते किसी पॉलिटिकल पार्टी से,
तो फिर इन पे क्यों लग रहा, बट यस इन पर भी लगता है. व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, 10th शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिस्टर राजीव गांधी, है ना. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. Yes, 𝗟𝗏 has written 6 months. 𝗟𝗄𝗏𝗀 has also written. Yes, C is the right answer. 6 months is the right answer. ठीक है. अब देखो होता क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई पॉलिटिकल डिफेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं. अगर कोई बंदा ए पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, ठीक है, ए पॉलिटिकल पार्टी से एक्स बंदा ज्वाइन किया, ही फॉट इलेक्शन, बिकेम एन एमपी, एंड आफ्टर बिकमिंग एमपी ही ज्वाइंस बी पॉलिटिकल पार्टी. नाउ इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज डिफेक्शन, कि वाह आपको टिकट कहीं और से मिला, इलेक्शन जीतने के बाद कहीं और चले गए. बट इन केस ऑफ नॉमिनेटेड, फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 एमपीज को नॉमिनेट किया था राज्यसभा में, तो किसी पार्टी से नहीं होते हैं ना. दे आर नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, दे आर मोस्टली फ्रॉम आर्ट, सर्विस, लेट्स से दीज फील्ड्स, सोशल सर्विस एंड ऑल. लेकिन इनमें भी लगता है डिफेक्शन. उसमें क्या आता है, इफ ही जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स सीट्स आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19 एंड ऑल. जब उन्होंने सीट लिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा है PQR, उसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया. सो प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स PQR फॉर राज्यसभा सीट्स, नॉमिनेशन के अंदर जो 12 नॉमिनेटेड होते हैं ना उसमें से, ठीक है. एंड ही इज नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पार्टी से वो नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर वो चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, तो जिस दिन उन्होंने राज्यसभा का ओथ लिया उसके 6 months के अंदर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, उसके बाद नहीं ज्वाइन कर सकते. ओके, ठीक है. तो जैसे आज किसी ने राज्यसभा का सीट लिया और वे नॉमिनेटेड है, मतलब किसी पार्टी से इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है. सो विद इन 6 months ही इज सपोज्ड टू ज्वाइन एनी पार्टी. अगर उसके बाद ज्वाइन करेंगे, इफ ही और शी ज्वाइंस आफ्टर 6 months, देन he will be disqualified. So C is the right answer to this question. Okay, yes, 𝗟𝗲𝗴𝗹 𝗟𝗄𝗏𝗀 you all are right. C is the right answer. ठीक है. तो मैंने ये nominated के इसलिए दिया था because it is slightly an exception, so you should be knowing it. Okay, the cult of operational superiority from Israel to India. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना. There he is again talking about the same conflict, 7th October attack and all, and after that there has been conflict and all going on. These are the things being talking about. तो पास में जा रहे every couple of years, starting in 2008, even in the back also, in the past also, Israel has launched limited air campaign into Gaza, etc. and all. Every couple of years it would kill, destroy, just enough and all. So these are the things he's talking about in the past. In the parallel routine, देखो अब actually we have talked about two-state solution की हम लोगों ने बताया है. So the concept of two-state solution, then Oslo Accord, और इंडिया का भी ये स्टैंड है, India's stand, है ना. Even today also India has stood with this concept of two-state solution. However, Benjamin Netanyahu has abandoned it. So the current Prime Minister of Israel has abandoned the concept of two-state solution and all. Then he is talking about Palestinian Authority. देखो, here is Israel, this is India, है ना. So ये वाले में West Bank region में PA, that is Palestinian Authority is ruling it and all. ठीक है. So that is what you should be knowing it. That nominated ran the West Bank है ना. So West Bank को मैं. And please tell me after the class is over, write it in the comment. नीचे comment section में लिखना कि who is the Prime Minister there? Prime Minister of Palestinian Authority in West Bank region. What is his name? Please write it in the comment section. नीचे लिखना class के बाद. Okay. So indeed, Israel's operational superiority does provide something of a guarantee. Hamas poses no extension threat. So operational superiority in Israel has more advanced technology and all. But short of that, a weaker and highly resolved enemy can still inflict untold physical harm. Yes, it is true that yes, Israel is actually more powerful, I mean, in the sense of the advanced technology, but still the enemy can cause substantial harm to the Israel. It has done. 7th October ka is given example. Yes, very good. Mahmoud Abbas Fatah Party. Good. 𝗟𝗏𝗀 𝗟𝗄𝗏𝗀 right. So he is actually from the Prime Minister in the West Bank region. Okay. Now, so similarly, he is talking about India के केस में बता रहे हैं कि like facing a more urgent threat on China border in 2020. तो LAC, LOC ये सब बता दिया हूँ मैं, है ना. I have explained what is line of control, line of actual control. These things we have already discussed it in the past. So, जैसे for example, India has procured new technology called as SPICE, Smart, Precise, Impact, Cost-Effective Missile. That is called as SPICE missile. Adopted new punitive attack options such as in Balakot attack में ये use किया गया था इस तरह के missiles and all. So these are the things being talked about.
हाँ, रिसेंटली ब्लिंकन मेट हिम, यस, गुड, हाँ, महमूद अब्बास से, यस, हाँ, ओके। नाउ अब देखो देतेंते की बात करें। देतेंते मतलब क्या होता है? इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप। अगर कोई, इफ देर इज नॉट वेरी गुड रिलेशनशिप एंड देर इज अ मूव, आई मीन द स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग द रिलेशनशिप, दैट्स कॉल्ड एज देतेंते, फ्रेंच वर्ड है। So for example, is giving the example of Israel and older Arab Emirates, mostly recently Saudi Arabia and all. जैसे एक हुआ था अग्रीमेंट 2020 में इजराइल और यूएई के बीच। व्हाट इज दैट एग्रीमेंट कॉल्ड? उसका नाम बताना है उस एग्रीमेंट का। Similarly, recently Israel's one of the minister visited Saudi Arabia also. So that is what he is talking about, that there have been detente and all in recent days and all. So that is what you should be knowing it. तो 2020 का जो एग्रीमेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आया था, अब्राहम अकॉर्ड। ओके, यस, गुड, गौरी सेठी, आलिया कौसर, गुड, वेरी गुड। ओके, मोर लाइट लेस साउंड। अब देखो फेस्टिवल फ्लाइट्स, आई होप यू आर अवेयर दिवाली इज वेरी नियर एंड द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इन 2018 CSIR लॉन्च्ड अ ग्रीन क्रैकर्स। ओके, ठीक है, सो ग्रीन क्रैकर्स वगैरह की बात कर रहे हैं। So what is that, whose views various statutory bodies have mandated, है ना। So अब देखो जैसे एक नॉइस पोल्यूशन लॉ है, उसके अंदर क्या आता है कि साइलेंस जोन के अंदर वी कैन नॉट यूज बर्स्ट क्रैकर्स, जैसे 10 PM से 6 AM तक खास के होता है ना, ठीक है। हाँ, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट। फिर देन ही इज टॉकिंग अबाउट डेसिबेल। देखो डेसिबेल जो होता है वो लाउडनेस मेजर करने का मेथड होता है, ठीक है। So they are giving some examples कि इतना डेसिबल के अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा डेसिबल वॉइस नहीं होना चाहिए। These are the things he is talking about. तो खैर इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, but just have an idea that yes, here the author is actually talking about noise pollution and all. So during Deepavali firecrackers, even green ones routinely produce more than 90 decibel of sound. तो अगर ग्रीन क्रैकर्स भी होता है वो भी 90 डेसिबल से ज्यादा आवाज करता है। So there are some regulations regarding it and all. खास के ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में कुछ हियरिंग हुआ था। एक्चुअली हुआ यह था कि 2018 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वेयर सुप्रीम कोर्ट बैन क्रैकर्स इन दिल्ली। कोई बता सकता है उस जजमेंट का नाम क्या है? एनीवन? और सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू इंक्लूड बेरियम अलाउ जॉइंट फायर क्रैकर्स इन दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया बेरियम वगैरह ये सब यूज करने के लिए। ओके, देखो है ना, एक्चुअली क्या हुआ था, देखो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस नॉट टू सेल ऑफ इवन ग्रीन क्रैकर्स। सो ग्रीन क्रैकर्स भी अलाउ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। विशेस दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल। बैक्स दिल्ली गवर्नमेंट सेज नो टू प्रोडक्शन सेल ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। सो एक्चुअली यह था सेड इट्स 2018 ऑर्डर बैनिंग फायर क्रैकर्स शैल बी ड्यूली इन्फोर्स्ड। सो जो 2018 का ऑर्डर है वो इस बार भी इन्फोर्स्ड होगा। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जजमेंट? कोई बताओ तो, एनीवन? देखो है ना, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरफेयर विद दिल्लीज ब्लैंकेट बैन ऑर्डर ऑन क्रैकर्स। अभी ये सितंबर की न्यूज। देखो एक्चुअली ये है अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 का है। ओके, यहाँ पे भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज, है ना। अभी देखो ये रिसेंट आर्टिकल है। तो अर्जुन गोपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली बैन कर दिया था। कंप्लेंट दैट बैन वाज ओपनली फ्लाउटेड एंड ऑल। तो इट वाज बैंड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑल एक्सेट्रा रीजन एंड ऑल। सो अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे कि सर प्लीज I mean allow us green crackers and all, but Supreme Court ने मना कर दिया, refuses to interfere with Delhi's blanket ban order. Okay, and they have said that the two judges have said that complete ban has been imposed on firecrackers despite the court allowing bursting of green crackers and all. Okay, so these are the things you should be knowing it. इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्या होता है बेरियम क्रैकर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और इस केस को थोड़ा सा आप हल्का सा रीड करना, अर्जुन गोपाल केस रिगार्डिंग दिल्ली फायर क्रैकर बैन एंड ऑल। ओके, सो गो एंड रीड इट। ओके, सो नाउ एक और है ओपिनियन कैनेडियन ड्रीम इज नॉट वेयरिंग एंड ऑल। ओके, अब इसमें यह है कि अगेन देखो कनाडा इंडिया में, सो एक्चुअली क्या होता है, इंडिया से बहुत सारे बच्चे कनाडा पढ़ने जाते हैं। आई होप यू आर अवेयर। So that is what they are talking about. Canada is home to about 1.3 million Indians who account for 4% of the country's population, है ना। बहुत सारे immigrated people है ना। So that is what they are talking about, है ना। Indian immigration peaked in the 2016-21 period. Indians who have become permanent resident in Canada increased. So पिछले 2013 से लेकर 2022 तक काफी सारे Indians की आबादी बढ़ी है। These are the things they are talking about, ठीक है। Canada has thus emerged as one of the most sought after destination for Indians who wish to study abroad.
तो इंडियंस बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज व्हाट द ऑथर इज राइटिंग। हालांकि इसके अलावा भी जैसे जर्मनी लोग जाते हैं, यूएस जाते हैं, साउथ कोरिया जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, बट वन ऑफ द ऑप्शन इज कनाडा। ओके, तो ये सब नंबर याद नहीं रखना है, बट जस्ट हैव एन आइडिया। ओके, ठीक है। इन सितंबर फॉलोइंग सेवियर स्ट्रेन इन टाइज, ये टाइज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सितंबर से, आपको पता है। इंडिया अपडेटेड इज एडवाइजरी अर्जिंग इट्स सिटीजन और प्लानिंग टू ट्रैवल टू सिलेक्ट टू एक्सरसाइज एट मोस्ट कॉशन। तो इंडिया ने कहा अपने सिटीजन को कि अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो ख्याल रखें, अपना एट मोस्ट कॉशन रखें। सो देयर हैव बीन समथिंग, है ना। अब जैसे कुछ बच्चे, किसी के माँ बाप, मान लीजिए माँ बाप इंडिया में, अब उनके बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि अरे क्या हो गया, ये वो एंड ऑल। So these things do happen. Young Indians pursuing higher education in Canada are found to suffer extreme anxiety on hearing such warnings. अब जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पिछले साल गए होंगे, 1-2 साल पहले गए हुए होंगे, और उनकी भी पढ़ाई चल रही है, तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि अरे इज इट एवरीथिंग फाइन, क्या होगा, मतलब मेरे प्रोस्पेक्ट फ्यूचर का एंड ऑल। So these are the things, है ना। So Indian students, especially those pursuing masters and research degree, prefer destination that promise fee waiver and offer scholarship and all. अब इंडियंस वो जगह खास के ज्यादा जाते हैं जहां पर हमको स्कोप हो कि कम फीस में काम हो जाए, या स्टाइपेंड कुछ सैलरी वगैरह मिले पढ़ते ही टाइम, या स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि फीस कम हो जाए, है ना। जैसे जर्मनी लोग जाते हैं, सो वन ऑफ द एग्जांपल इज कनाडा आल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। द डिसीजन टू स्टडी इन कनाडा हैज अदर डायमेंशन एज वेल। स्टूडेंट्स सी इट अ पोटेंट रूट टू सेटल अब्रॉड फॉर बेटर कैरियर एंड ऑल। अब देखो ये बता ये रहे कि बहुत सारे लोग वहां जाके सेटल हो जाते हैं, ज्यादातर लोग सेटल हो जाते हैं, बहुत कम ही वापस आते हैं। जैसे अगर इंडिया से कनाडा गए, पढ़ाई किया, वहीं जॉब करने लगे, वहीं सेटल हो गए, वापस बहुत कम आते हैं, ना। सो 72.6% इंटेंट टू रिमेन इन कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग। सो अच्छी खासी आबादी जो है वो वहीं रह जाती है, जिसको हम लोग ब्रेन ड्रेन वगैरह कहते हैं ना। ये सब कॉन्सेप्ट्स nowadays इज वेरी मच फेमस। सो दे ट्राई टू अप्लाई फॉर द कैनेडियन सिटीजनशिप एंड ऑल, है ना, टू बी नो चीपर एंड फास्टर इन कंपैरिजन टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज। अब क्या है, कनाडा में सिटीजनशिप मिलना कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू यूएस और कोई और वेस्टर्न कंट्रीज, यूके एंड ऑल, ठीक है। तो लोग प्रेफर करते हैं कनाडा इसीलिए कि आसानी से सिटीजनशिप मिल जाएगी, सो वी विल गो देयर। दस इट्स द प्रोस्पेक्ट दैट ल्यूर पीपल टू द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ। ग्रेट व्हाइट नॉर्थ मतलब वही कनाडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही वो बता रहे हैं कि काफी प्रोस्पेक्ट होता है, सो दे मूव इट एंड ऑल, ठीक है। हाउ द स्टडी रूट्स टू सेटलिंग इन कनाडा इज नॉट ऑलवेज ल्यूक्रेटिव हाउएवर, है ना। लेकिन बता रहे कि हमेशा ल्यूक्रेटिव नहीं होता। ल्यूक्रेटिव मतलब अट्रैक्टिव के सेंस में, इन्हें ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं होता, उसमें कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे बता रहे कि 30% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर एबल टू गेट रेसिडेंस। फिर एंड्रोइड एविडेंस इंडिकेट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फाइंड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू गेट जॉब्स। अब एक और मसला ये हो रहा है कि अब बहुत बार ना जॉब्स नहीं मिलती है। कई बार जो इंडियंस जो हैं लॉन्ग क्यूज में खड़े हुए हैं इवन पार्ट टाइम जॉब्स लेने के लिए, तो बहुत सारे इंडिया से जो लोग कनाडा जाते हैं तो सबको जॉब नहीं मिल जाती है, कई लोग को बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो खैर ये तो समाज की रियलिटी है, दीज आर द थिंग्स। स्टेट्स इन कोर्ट्स अगेंस्ट द गवर्नर्स, ये तो हम लोगों ने बात कर ली है ना, वी हैव डिस्कस्ड इट। इसमें से जैसे आर्टिकल 200 है ना, कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर है व्हेन अ बिल कम्स टू हिम, व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इट कम्स टू हिम, सो व्हाट आर द थिंग्स ही और शी कैन डू। सिर्फ मनी बिल को रीसेंड नहीं कर सकते हैं, है ना, ही कैन नॉट रीसेंड बैक मनी बिल, अदरवाइज है ना, सो ऑल अदर बिल ही कैन रीसेंड, रिजेक्ट एंड ऑल, है ना। तो ये सब चीज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। Yes, Cameron McKay was the ambassador of Canada to India who was expelled. Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗏, very good. हाँ, I had asked it yesterday. Good. हाँ, तो अब ये डिबेट चलता है क्या गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, जनरली स्पीकिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर काम करते हैं ना। लेकिन डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि गवर्नर अपने मन से काम करे, मतलब एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नहीं सुने। सो इसमें यस कुछ जगह पे डिस्क्रिशन होता है, बट वो बहुत ग्रे एरिया इन द सेंस कि बहुत डिबेटेबल हो जाता है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर स्टिल समटाइम्स डिबेट डू हैपन कि वेदर द गवर्नर हैज डिस्क्रिशन, इट कैन वायलेट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और नॉट। तो इस सब में डिबेट चलता है, ठीक है। डिस्क्रिशन वगैरह पे काफी इश्यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज हाउ द पर्सनल डेटा ऑफ 81.5 करोड़ इंडियंस गॉट ब्रीच्ड। आपने सुना होगा ये वाला न्यूज आया था। एक्चुअली क्या है इसमें ना, एक यूएस सिक्योरिटी, अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी, उसने ऐसा कहा कि 81.5 करोड़ इंडियंस का जो आधार का डेटा है वो बिक रहा है डार्क वेब पर। आप जानते हो कि डार्क वेब, and I hope you must have heard about dark web, है ना। So threat actors were willing to sell about it for data of $80,000 and all, $80,000 में सेल करने की बात हो रही थी। Okay, threat actors selling the data claimed it has sourced from ICMR.
तो लोग बता रहे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उन लोगों ने पता नहीं कैसे डेटा निकाला है साइबर अटैक करके एंड ऑल. सो दीज आर द थिंग्स इट वाज टॉकिंग अबाउट. फिर मिनिस्टर साहब ने कहा कि नॉट हैप्पी प्रोब ऑन, कि क्या सही में हुआ है, अगर हुआ है तो इट इज़ नॉट वेरी गुड एंड ऑल. सो लेट्स सी, इसको फॉलो करते रहना आधार वाला एंड ऑल, बिकॉज सी आधार में ना बहुत सारा बायोलॉजिकल डेटा भी दिया ना, जैसे रेटिना वगैरह का भी डेटा है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड, फिंगरप्रिंट वगैरह भी आई थिंक दिया होता है ना. ठीक है, ओके. India Bhutan to discuss routes to regional connectivity. So he is Bhutan's king, Mr. King 𝗟𝗲𝗴𝗹𝗀𝗀𝗀𝗧𝗏. So he is in India to discuss the regional connectivity. Connectivity मतलब क्या होता है? Roads, bridges, railway, यही होता है ना. अच्छा, एक ट्रेड इनिशिएटिव था BBIN, इसको पढ़िएगा. एंड भूटान पार्लियामेंट डिड नॉट पास इट. BBIN पढ़िएगा, ठीक है. ये भी रीजनल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है. सो गो एंड रीड अबाउट इट. कॉलेजियम रिकमेंड्स चीफ जस्टिस ऑफ 3 हाई कोर्ट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज. तो 3 चीफ जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट के. द कॉलेजियम हैज रिकमेंडेड देम टू बी मेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो लेट्स सी, है ना. ऑड इवन व्हीकल रोटेशन स्कीम टू रिटर्न इन दिल्ली. ऑड इवन लाने की बात कही जा रही है दिल्ली में. आपको पता होगा ऑड इवन कुछ सालों पहले आया था, काफी न्यूज में था एंड ऑल, यू शुड बी नोइंग इट, है ना. नाउ आफ्टर द क्लास इज ओवर, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखना. After the class is over, recently the new Chief Information Commissioner has been appointed. So what is his name? Please write it in the comment section after the class is over. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.